Well, it's a very interesting film. First of all, it's like a sort of biographical film. Manji is a Russian Manji, which is and it is a very interesting story. It took 20 years to cross the path, and what he did with the chisel and how it was made. So really looking forward to it. Yes. Okay, what do you want to say about Western Manji, a person who really broke a mountain? What do you want to जब आपने इनके बारे में पढ़ा सुना क्या ख्याल आया? Manji ऐसे ही बहुत ही like history देख लिया जाए इतिहास की बात like one of those greatest people and जो उन्होंने किया 22 साल उन्होंने लगाए एक हैमर और chisel से एक मोती को पार करने में सब के बारे में सोच करके ताकि Okay, मैम ये मूवी रिलीज होने से पहले लीक हो गई, ऑनलाइन लीक हो गई। What do you want to say about जो है पायरेसी चालू इसके बारे में क्या करेंगे? Piracy, just want to say, I know it's not very, it's not a great thing, and that's it, it's been very common practice by the should just tell everybody to stop. Well, yeah, that's true, but what I've heard is that इस फिल्म का जो लीक हुआ है, I don't know what it is. I really don't know. The movie based on the story, man who broke a mountain for so how extreme do you want to your love? Any scene you want your lover to do for you? What is that? No, I just want him to be loyal, and that's it. Like a very simple, stay simple. I don't want to do anything. So for any of your friends or anyone who is something extreme for you? Yeah, Love and affection. What is that? One of the fans. What has he done? If you can tell us. Written something, a letter. Oh. Yeah. That's very scary. Yeah, it was. Tell us, last question, okay? Tell us about your upcoming movie. Great grandma. Yeah, well, today it's a very special day because Daddy Mummy got released today. It's a special song from Bhag Johnny, and I'm really excited for it. It was directed by director Gifty, who previously directed Desi Kalakar, and then I'm shooting for Great Grand Masti, which will release next year. I'm also shooting for Sanam Ray, which will release next year, Valentine's Day, and yeah, one more comes with tips. Tips. I'm also doing a tips film with Ramesh Tharoor. Thank you. Thank you. Always very happy when an artist gets a chance to express himself, and Ketan is really an artist, and he makes film with great sensibility. I mean, just the thought of a man who spends his life cutting a road through a mountain, I mean, what a concept. It's great. So, I've been an admirer of his, and I wish him all success. And I believe Nawazuddin has been fantastic in the film. So a big salute to him too. God bless. See you later. Thank you.
रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा मिल रहा है, रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा मिल रहा है। और जो लोग मुझे ऑफकोर्स बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है, बहुत ही एक्साइटमेंट भी है एट द सेम टाइम। आई थिंक लेट्स सी। केतन जी आप बोलिए। इस फिल्म की प्रमोशन के लिए हमने तय किया कि हम शहर शहर जाएंगे और डायरेक्ट प्रमोशन करेंगे और लोगों से जाके मिलेंगे, बच्चों स्कूलों या कॉलेजों में मिलेंगे। तो 12 शहरों में हम लोगों ने पिछले 10 दिनों में ट्रैवल किया और जो रिस्पांस वहाँ से मिल रहा है वो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिस्पांस मिल रहा है। और स्पेशली खुशी इस बात की हो रही है कि जो यूथ है वो इस फिल्म को रिएक्ट कर रहा है, विच इज़ सरप्राइजिंग एंड विच इज़ अ वंडरफुल फीलिंग। सो आई होप आपके किरदार के लिए कुछ अप्रिशिएशन मिला है आपके किरदार के लिए कुछ आपको अप्रिशिएशन मिला है? बहुत अप्रिसिएशन मिला, थैंक गॉड। बिकॉज ऑफ केतन सर, उन्होंने इतना अच्छा पोर्ट्रेट किया है कैरेक्टर को, उसमें सारे कलर्स हैं और जो लोगों को बहुत पैशनेटली यूथ को बहुत पसंद आ रहा है। तो वी आर होपिंग दैट गैलोर में जो था बहुत ही इमोशनल और बहुत ही लाइक वार्म एनवायरनमेंट हो गया था, क्योंकि जिन लोगों ने वो पहाड़ देखा है वो ये स्टोरी सुन रहे थे जो यहाँ पे, और वो जब लोग वहाँ पे गए गैलोर में गए और उस पहाड़ को देख के एक अमेजिंग सी, एक अजीब सी एक वो होती है, खुशी होती है कि, और ताज्जुब भी होता है कि कैसे पॉसिबल हो सकता है, लेकिन पॉसिबल हुआ है। तो लोगों को तो जब हमने शुरुआत किया था फिल्म की कंपनी शुरू की थी, तो लोगों को यकीन ही नहीं होता था कि कोई एक इंसान ऐसा भी कर सकता है, लेकिन वो हमारे सामने हुआ है, हमारी इस लाइफ में हुआ है। तो जब लोग उस पहाड़ को जाके देखते हैं तो ऑफकोर्स एक कंपैरिजन आता है कि ताजमहल है और एक ये चीज़ है। आई थिंक उसमें डेडिकेशन, जुनून ज़्यादा है उसमें जो उन्होंने मोनूमेंट बनाया है, और वो एक प्यार का, आई थिंक वो हम होप कर रहे हैं कि आने वाले वक्त वो प्यार का एक सिंबल बने। फिल्म रिलीज हो रही है और उसकी पहली फिल्म ऑलरेडी लीक हो चुकी है, तो इसका कितना असर बॉक्स ऑफिस पर पड़ेगा और प्रोड्यूसर को कितना क्या हाल उठाना पड़ेगा? क्या आपने कोई एनी एक्शन सर जो आप लेना चाहिए आगे भी, मतलब बॉलीवुड में हेल्प ऐसे मतलब जो इलीगल होता है मैं यही कहना चाहूँगा कि एक तो ये फेक वर्जन था, पुराना वर्जन था जो आज निकल के आया है, पर ये जो हो रहा है ये बहुत ही गलत हो रहा है। इसकी वजह से प्रोड्यूसर्स को, हम टेक्नीशियंस को जिन्होंने इतनी मेहनत की है उनको डिस्करेजमेंट मिलता है और कुछ नहीं। तो ये गलत बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। पर हम उम्मीद करते हैं कि ये जो एक माउंटेन और एक मैन की जो जंग है वो बड़े पर्दे पे ही उसका असर दिखाई देगा, आपको वो मज़ा लैपटॉप में नहीं आ सकता। सर, आपको नहीं लगता कि ये सब हो रहा है जो आपको सिक्योरिटी और बढ़ा देनी चाहिए सेट्स पर? जिस तरह से फिल्म में पोस्टर्स लीक होती है तो सिक्योरिटी थोड़ा ज़्यादा, जब सिक्योरिटी बढ़ती है तो आप ही लोग बड़े सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। तो इसमें एक बैलेंस बनाना ज़रूरी है। हाँ, नई टेक्नोलॉजी की वजह से नए कॉम्प्लिकेशंस, नए चैलेंजेस आते ही रहेंगे और हमें उन चैलेंजेस को मीट करते ही रहना पड़ेगा। सर, ये प्रिंट है, ये लीक हुई है, वो फेक वर्जन है, पुराना वर्जन है। कितना अलग है उसमें से, मतलब मैं आपको डिवाइड करने बोलूँ परसेंटेज में कितना 60% चेंज है कि 50% कितना अलग है? अब ये आंकड़े देना मुश्किल है, पर इट्स डिफरेंट वर्जन, एब्सोल्युटली डिफरेंट वर्जन। अच्छा, मांझी की जो टीम है कितने अवार्ड एक्सपेक्ट कर रही है इस साल? अवार्ड में क्या रखा है दोस्त, आप लोगों को पसंद आए फिल्म, ये सबसे बड़ा अवार्ड है। आप लोगों से जानना चाहिए कि ऑलरेडी रिलीज हो रही है, तो आपको लग रहा है खाना कॉम्पिटिशन का कुछ लग रहा है? ये तो अब हर हफ्ते होने वाला है कि आपका कंपटीशन बढ़ता जाएगा। उस कंपटीशन के अंदर आप कैसे अपनी मार्जिन निकाल लेते हैं, वही चैलेंज है। और हमें लगता है कि फिल्म बहुत अलग है और बहुत ही एंटरटेनिंग है एट द सेम टाइम। सो देयरफॉर एक क्यूरियोसिटी बढ़ेगी ऑडियंस की, और हम ये होप कर रहे हैं कि ये फिल्म जो है वो अक्रॉस द बॉर्डर, एज ग्रुप्स के बाहर सबको पसंद आएगी।
रीजन के बाहर भी पसंद आएगी। और एक खुशी की बात यह है कि फिल्म की को फर्स्ट डे से काफ़ी सारे स्टेट्स के अंदर टैक्स एग्जम्पशन मिल रहा है, विच इज़ यूनिक थिंग बाय इटसेल्फ। बिहार, MP, UP, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, इन सब जगह पे पहले दिन से टैक्स एग्जम्पशन है। सो आई होप दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। हमारी दिली ख्वाहिश ये है कि हर बच्चा इंडिया का ये फिल्म देखे। ये वही मैं कह रहा था कि इन सब स्टेट्स में टैक्स भी हो चुकी है, फिल्म हो चुकी है। कॉम्पिटिशन नहीं होता, लाइक जैसे एक ही दिन आई थिंक लगान और वो भी फिल्म रिलीज हुई थी, तो गदर, तो अच्छी फिल्में होती हैं तो लोग अपना मुझे डिसाइड कर लेते हैं कि किस तरह कौन सी फिल्में देखनी है अच्छी फिल्म। डेफिनेटली मैं उम्मीद करता हूँ कि दोनों फिल्में चलेंगी। ये मेरा जो है ना बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे है, मैं काम कर लेता हूँ और वो मेरे हाथ में है, उसको कितना अच्छा हो सकता है, कितना ऑनेस्टी के साथ हो सकता है काम, वो काम करके फिर बॉक्स ऑफिस का तो सोचना अपने प्रोड्यूसर्स का और उनका होता है। लेकिन आज जिस लीक हुई है, हालांकि उन्होंने बता दिया है कि ये वो फेक प्रोजेक्ट था, तो आप क्या इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग अपने ही जाएंगे, अपने ही एक्साइटमेंट से जाके या फिर मुझे उम्मीद है कि अगर लोगों को परफॉर्मेंस देखनी है, माउंटेन्स देखना है और फिल्म में जाके रोना है, हंसना है, ताज्जुब करना है, अगर तो वो लोग फिल्में देखते हैं सिनेमा हॉल में। अगर लिस्ट अपनी बना ली, बहुत सारे लोग लिस्ट बनाते हैं, चलो मैंने ये फिल्म भी टॉरेंट पे देख ली, इस पर यहाँ पे मेरी ख़त्म हो गया, वो ऐसा हम लोग जब शुरुआत की थी हम सिनेमा हॉल में फिल्में देखते थे, इसलिए यहाँ तक पहुँचे। अगर अभी ये जनरेशन अगर लैपटॉप पे फिल्म देखना शुरू कर दिया ना तो बहुत डेंजरस उनके लिए है एक्चुअली, क्योंकि फिल्में जो है ना फीलिंग के लेवल पे देखी जाती हैं या लिस्ट बनाने के लिए नहीं देखी जाती। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सब लोगों से कि वो आएँ और क्योंकि फिल्म में रिपीटिंग वैल्यू है और आएँ और सिनेमा हॉल में देखें। फिल्म 102 नॉट आउट में क्या आपका कोई किरदार भी नजर आएगा? ऐसा हमने पढ़ा आज की कौन सी फिल्म? 102 नॉट आउट, अमिताभ बच्चन जी की फिल्म जो है आने वाली है, उसमें क्या आपको? नहीं, मेरा तो अभी कोई, क्योंकि मैंने पढ़ा था कि वो किसी ऐसे किरदार को लेना चाहते हैं जो आपको रिजेंबल करे। अभी मुझे कुछ पता नहीं चला। Thank you so much.